Hello friends, welcome back. Children, this is SY BCom semester 4, and after discussing some of the MCQs for the third semester children, today we are going to discuss for the MCQs that will belong to our semester number 4. So children, 4 different modules to be discussed. Every module will be having different chapters, and all the chapters we are going to cover syllabus which was mostly covering up something related to public finance. So some of us have already discussed it, those who have not discussed it. I will be clearing up certain concepts as we proceed with the lecture. So every lecture children, I will be discussing objectives related to that particular module. So today children, it's going to be the first module, which is actually the introduction, or as you can see on your screens, it reads the role of government in an economy. And children, when we're talking about the role of government in an economy, we actually deal with something related to public finance. Now, talking about the public finance, children, we will try to understand how the government tries to implement or tries to interfere in the economy situation or economic activities of any particular country. Okay, so directly moving towards the MCQ children, the first question that we have there, which actually reads out: choose the correct alternatives and rewrite the statement. Okay, now children, here we'll just try to understand things related to public finance. The first question it reads that which of the following is not within the scope of public finance? Public finance के scope में क्या नहीं आता ऐसा पूछा है. So children, option number 1 which reads public revenue. Public revenue children is generally generated through by taxing the people, and other than that we also got non revenue or non-tax revenue के भी बहुत सारे sources होते हैं, like fines and penalties and all those things. It's a part of your budget. Then we have got the public expenditure. It is also a part of your budget. Financial administration भी चलो आता है. तो the option is left out with what is known as monetary management. ठीक है. So उन्होंने पूछा था इसमें से कौन सा point public finance के scope में नहीं है. Now, I hope every one of you is quite aware that in any particular country, there are two policies which are announced. One is called as a fiscal policy, another one is called as a monetary policy. Monetary policy is actually designed and implemented by the central bank of any particular country. And when we refer to the fiscal policy, it includes the budget, which is actually being implemented by government, and it's a part of public finance. Okay. Question number 2. A dash budget should be followed during depression. Depression के टाइम पे कौन सा बजट फॉलो करना चाहिए? अच्छा, first of all, children, we should be able to understand what is the meaning of that depression. I hope you people are aware that in any particular country, the economic activities do not show a stable pattern. In the sense, we have studied one chapter, children, in which we studied about all these ups and downs, right? So whenever the economy operates at the top, it's called as the boom, peak, or it's called a prosperity. And this bottom position children is called as the depression. वो तुम्हारा economy depression में चला गया है, तो अभी गवर्नमेंट का एम क्या होता है? We need to take the country out of this depression, right? And we want to walk on that path of steady growth. इसके ऊपर चलना है path of steady growth. This is steady growth children. अच्छा, depression कब आता है? When there is no money in the market, people don't have money. There is less lack of employment, people are not spending, aggregate demand is less in the market. So that means money is less. So during such times, children, what the government does, there are 3 types of budgets that we have. Now we have got a balanced budget, a surplus budget, and a deficit budget. So what happens in a deficit budget? In a deficit budget, children, generally your revenue side would be falling short and your expenditure side will be more. अच्छा, डिप्रेशन में क्या होता है? लोगों के पास पैसा नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स नहीं लगाएगी लोगों को, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होगा? कम होगा. हाँ, and during the time of depression, children, since people do not have money to spend on themselves, the government keeps on spending more money on the people. So मुझे लगता है गवर्नमेंट का फिर एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है. And children, this is something referred to as the
deficit budget. Okay, so talking about the deficit budget, children, it's a solution against depression. So I think exact answer is going to be a deficit budget. Okay, बैलेंस बजट में तो दोनों साइड सेम होते हैं. सरप्लस बजट जो रहता है चिल्ड्रन, इट्स टेकन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन. ये बाहर करके रखना जनरल नॉलेज के लिए भी. डिप्रेशन के टाइम पे डेफिसिट बजट आप याद रख सकते हो इसे, ये डी और ये भी डी, तो डेफिसिट डिप्रेशन. क्या न्यूट्रल ऐसा कोई टाइप का बजट होता नहीं है. पॉइंट नंबर 3 चिल्ड्रन, the term functional finance was introduced by dash. क्या बोला है? The term functional finance was introduced by dash. Children, if you remember, there are two types of finances that we have, children. One is called as functional finance and another one is called as sound finance. अभी बात ये आती है कि फंक्शनल फाइनेंस किसने इंट्रोड्यूस किया था. Okay, so the answer there, children, lies with what's known as AP Lerner. So they have mentioned some 4 different names there, children. We have got Lord J. M. Keynes, then we also have got Richard Musgrave, and at the same time Hugh Dalton and AP Lerner. So our answer for today, children, AP Lerner. He was the person, children, जिन्होंने बताया था कि what is the meaning of functional finance. Sound finance और functional finance के बारे में और आपने सुना रहेगा, children. So sound finance says that there is no need for government intervention in economic activities, whereas functional finance, children, says that there is a need for government to interfere in economic activities. Okay. Question number 4, children. Fiscal policy deals with dash. Okay. First of all, children, everyone is aware that the fiscal policy is announced by the central government or the government of any particular country. अच्छा, what does it deal with, children? Point number 1 उन्होंने बोला है raising revenue through taxation. लोगों को टैक्स लगाने का, कॉर्पोरेट्स को टैक्स लगाने का और उसमें से पैसा इकट्ठा करना है, तो आंसर फिट हो रहा है. Then they also have to decide about the public expenditure. कि ये जो पैसा हमने टैक्स के जरिए इकट्ठा करना है, ये हम लोग खर्चा कहाँ पे करेंगे. Then children, it also involves what is called as the public debt. गवर्नमेंट के मेन 2 काम होते हैं. एक, अपना खर्चा तय करो, उस खर्चे को फाइनेंस करने के लिए टैक्स लगाओ. अच्छा, लेकिन जनरली आप सबको पता है कि एक्सपेंडिचर वुड बी जनरली हायर देन व्हाट इज कॉल्ड एज द रेवेन्यू, और इसकी वजह से फिर गवर्नमेंट को मार्केट से क्या उठाना पड़ता है, लोन, और लोन्स को हम लोग क्या करके रिफर करते हैं यहाँ पे, पब्लिक डेब्ट. सो चिल्ड्रन, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. क्या आएगा आंसर? ऑल ऑफ द अबव करके आएगा आंसर यहाँ पे. सो होप सो चिल्ड्रन you get it, that option is answer D, we can say. Achha, next question है children. Classical economists advocated the government to involve in dash. Children, I hope you are aware that there are different schools of economics. There's a classical thought that we have, then we have got a neoclassical, and then children we also have got what is called modern economics. तो जितने भी classical economists थे, तो उनको क्या लगता था? What did they advocate? तो गवर्नमेंट शुड इन्वॉल्व इटसेल्फ इन ऑप्शन नंबर 1, चिल्ड्रन, व्हाट दे गिवन, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी. तो मुझे लगता है दैट ऑप्शन शुडंट बी राइट. ओनली इन मोस्ट एसेंशियल सर्विसेज, दैट लुक्स राइट. एंड सिलेक्टिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, नहीं. तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को लगता था कि गवर्नमेंट और बिजनेस दे शुड कीप देमसेल्व्स अफार. गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है. और दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही है तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में ही वो लोग इंटरफेयर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गिविंग जस्टिस टू पीपल, प्रोवाइडिंग वेलफेयर टू द पीपल, डिफेंस ऑफ द कंट्री. ये काम गवर्नमेंट का होता है. बाकी सब बिजनेस वगैरह तो प्राइवेट लोग भी कर सकते हैं ना. सो व्हाई शुड द गवर्नमेंट बी हैंडलिंग दैट? अच्छा, देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6. Classical economists believed in dash. Classical economists इसमें believe करते थे. अच्छा, so children, classical economists, option number 1 में what are they talking about? Children, they are talking about number 1, the government should play an active role in the economy. No, they said that government is not required. The government should replace the market mechanism. गलत.
The government should not get involved in economic activities that can be efficiently handled by the market. ये मुझे सही लग रहा है. And the government should always spend large sums of money. That is wrong. तो क्लासिकल लोगों का मानना ये था कि गवर्नमेंट को जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उसमें खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए और जो चीजें प्राइवेट लोग अच्छे से हैंडल कर सकते हैं उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है. देन क्वेश्चन नंबर 7, डैश एडवोकेटेड कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन. डैश एडवोकेटेड कलेक्टिव ओनरशिप. चिल्ड्रन होप्स यू आर अवेयर. ये अलग अलग वर्ड्स आपने सुने. वी गॉट चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म होता है, देन वी गॉट मिक्स इकोनॉमी, सोशलिज्म होता है. कैपिटलिज्म में क्या होता है? ऑल द फैक्टर्स. आई होप यू बेटर अक्वेंट योरसेल्फ विद दिस वर्ड्स चिल्ड्रन. द फर्स्ट वन व्हिच आई एक्चुअली कॉल इट एज कैपिटलिज्म. अच्छा, सेकंड वाला जो हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज द मिक्स इकोनॉमी. एंड चिल्ड्रन वी आल्सो हैव गॉट व्हाट इज कॉल्ड एज द सोशलिज्म. अच्छा, कैपिटलिज्म में क्या होता है? ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली दे आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. सोशलिज्म में एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. इट्स आल्सो कॉल्ड एज कम्युनिज्म. मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? कुछ फैक्टर्स हम लोग प्राइवेट लोगों के पास रखते हैं और कुछ फैक्टर जो होते हैं उनको हम लोग हैंड ओवर कर देंगे किसके पास? गवर्नमेंट के पास. ओके, सो हियर ये वाला कॉन्सेप्ट चलो दिया था कार्ल मार्क्स ने. Karl Marx said that all the factors of production should be collectively owned by the government and not by the private people. Okay? Yes. Then, going ahead, children, with the question number 8. Achha. One of the first books exclusively written on public finance was by Dash in 1892. And that is, children, actually the answer is Bastable ने लिखा हुआ book था जो पब्लिक फाइनेंस का पहला बुक माना जाता है. हिक्स, डाल्टन एंड मसग्रेव चिल्ड्रन ये बाद में आए हुए लोग हैं. क्लियर? अच्छा, देन चिल्ड्रन द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, देन क्वेश्चन नंबर 9 चिल्ड्रन. इन रिलेशन टू पब्लिक फाइनेंस जॉन माइनर्ड केन्स एडवोकेटेड डैश. And your option number 1A children, the government should always maintain a balanced budget. तो आई डोंट थिंक चिल्ड्रन दैट शुड बी द प्रॉपर आंसर. बैलेंस बजट का मतलब ही नहीं होता है ना आप लोगों को जितना टैक्स लगाओगे, आप लोगों को 10,000 का टैक्स लगाओगे और बाद में लोगों के ऊपर 10,000 रुपए खर्च कर दोगे तो फिर लोग बोलेंगे कि अरे वो 10,000 रुपए हम लोग खुद भी तो खर्च कर सकते हैं ना. सो गवर्नमेंट जनरली नीड्स टू स्पेंड मोर देन व्हाट दे रिसीव. ओके, ऑप्शन नंबर 2 चिल्ड्रन, द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल ऑपरेशंस कैन बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट. गवर्नमेंट बच्चों बजट टाइम पास के लिए नहीं बनाता है. मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कम या फिर ज्यादा करना है, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट को जो इन्फ्लुएंस करने का काम होता है वो गवर्नमेंट का काम होता है. सो आई थिंक जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कम है तो गवर्नमेंट क्या करती है? डेफिसिट बजट को फॉलो करती है. जब भी उनको लगता है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो फिर वो लोग सरप्लस बजट को फॉलो करते हैं. क्लियर? अच्छा, पॉइंट. तो आई थिंक दिस शुड बी द आंसर. वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट अदर ऑप्शंस. द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल ऑपरेशन शुड नेवर बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट. बट दिस इज समथिंग अगेंस्ट केन्स. The government should always minimize its expenditure. ये भी गलत है. Then children, we got question number 10. After the Great Depression, and you remember children कौन सी ईयर में आया था Great Depression? 1929, 1930, right? पूरा दुनिया का इकोनॉमी एकदम बॉटम पे पहुंच गया था. The concept of dash began to emerge. क्या इमर्ज होना चालू हुआ था children? Functional finance. Children याद रखना, साउंड फाइनेंस ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, फंक्शनल फाइनेंस बोलते हैं कि गवर्नमेंट की बहुत जरूरत होती है इकोनॉमिक्स में. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 चिल्ड्रन, द फंक्शनल फाइनेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डैश. फंक्शनल फाइनेंस कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया. सो इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द बजट कुड बी यूज्ड टू करेक्ट इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटीज. अच्छा, ऑप्शन 2 क्या लिखा है? मार्केट्स कैन नेवर फेल. अच्छा, बजट शुड ऑलवेज बैलेंस एंड द गवर्नमेंट शुड लिमिट इट्स रोल्स टू नॉन इकोनॉमिक एरिया. मुझे लगता है चलो इसमें से ये जो क्वेश्चन पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी ये जो दिया है ये फंक्शनल फाइनेंस के साथ मैच नहीं करता है. फंक्शनल फाइनेंस बोलता है कि लाइक बजट को यूज करने का और फिर इकोनॉमी में जो इनस्टेबिलिटीज होते हैं उसको ठीक करने का. सो राइट आंसर चिल्ड्रन इज ऑप्शन ए. Question number 12. According to functional finance, a dash budget should be followed
ड्यूरिंग रिसेशन और डिप्रेशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, चलो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। रिसेशन या फिर डिप्रेशन के टाइम पे डेफिसिट बजट फॉलो किया जाता है, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट पब्लिक को टैक्स कम लगाती है और पब्लिक के ऊपर पैसा ज्यादा खर्च करती है। क्वेश्चन नंबर 13, अ डैश बजट कैन हेल्प टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। दैट इज चिल्ड्रन, इन्फ्लेशन के टाइम पे जनरली गवर्नमेंट कौन सा बजट यूज करेगी? अ सरप्लस बजट। कौन सा बजट? सरप्लस, मतलब ज्यादा टैक्स लगाने का और खर्चा कम कर देने का। अच्छा, पब्लिक रेवेन्यू कंसिस्ट ऑफ डैश। पब्लिक रेवेन्यू में क्या क्या आता है? तो टैक्स से जमा किया हुआ पैसा आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आता है। अच्छा, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आएगा। अच्छा, और सपोज फॉर एग्जांपल पब्लिक डेब्ट ये जनरली नहीं आता। अच्छा, तो सपोज फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन कि लाइक क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा उन्होंने कि लाइक व्हाट डज पब्लिक रेवेन्यू कंसिस्ट। अभी आप सिर्फ टैक्स पे टिक नहीं कर सकते हो क्योंकि ये बच जाता है, सिर्फ नॉन टैक्स रेवेन्यू पे टिक करोगे तो टैक्स बच जाएगा, इसलिए अपना राइट वाला आंसर बच लो सी, व्हिच इंक्लूड्स टैक्स एज वेल एज नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, देन चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 15, इन मोस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज पब्लिक डेट हैज शोन अ टेंडेंसी टू डैश। ज्यादातर कंट्रीज में आपने जो देखा है वहां पे गवर्नमेंट जो लोन्स देती है, क्या देती है गवर्नमेंट? लोन्स। तो लोन्स बढ़ते जा रहे हैं फिर कम होते जा रहे हैं, मतलब व्हाट टेंडेंसी हैव दे शोन? तो सीधी सी बात है, रिमेन मोर और लेस द सेम? नो, बढ़ते जा रहे हैं बच्चों गवर्नमेंट्स के ऊपर। तो जो लोन का बोझा रहता है, आई थिंक बर्डन इज कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग, सो आई थिंक डिक्रीज और डिसअपीयर, they are immaterial. Next question, children. The dash budget deals with the receipt of taxes and administrative expenditure of the government. क्या बोला देखो? The dash budget deals with the receipt of taxes and administrative expenditure of the government. Children, that should be generally dealing with what's known as revenue budget. दो टाइप के बजट होते हैं ना, एक होता है कैपिटल बजट और एक होता है रेवेन्यू बजट। तो रेवेन्यू बजट में कुछ लोग टैक्स से मिला हुआ पैसा और जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है उसको माइनस किया जाता है सिर्फ उसमें से। क्लियर? यस। अच्छा, देन चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 17, पब्लिक बोरोइंग्स आर अ पार्ट ऑफ द डैश बजट। बच्चों, बोरो करना मतलब क्या होता है? लोन लेना होता है, राइट? और अगर हम लोग लोन ले रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वो किसका हिस्सा बन जाएगा? कौन से अकाउंट का? कैपिटल अकाउंट का हिस्सा बनता है। ओके, रिजर्व, रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट ये सब नहीं आता उसमें। Next question, children. Since 1950s, economic role of the government in most economies. 1950s के बाद में चलो इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का रोल है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, फिर आई थिंक इकोनॉमिक एक्टिविटी जब बढ़ते जा रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है और उसको इन्फ्लुएंस करना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए गवर्नमेंट एक्चुअली प्लेज वाइटल रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Children, question number 19, that is reading. It is difficult to assess the outcome of financial activities of the government because dash social benefits and costs are subjective in nature करके लिखा है। Social benefits and costs are subjective in nature and the budgetary activities are not open to scrutiny. गलत, they are open to scrutiny. बजट या तो सरप्लस होता है फिर डेफिसिट होता है, बराबर, लेकिन इसमें फिट नहीं होता है। मार्केट्स कैन नेवर फेल, मार्केट्स कैन फेल। अच्छा बच्चों, गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज करता है उसको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जो पैसा खर्च किया है उससे लोगों को ना बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट ने एक रोड चालू किया, पब्लिक को बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा, लेकिन पब्लिक को एग्जैक्टली कितना बेनिफिट मिल रहा है उसको काउंट करने के लिए कोई तरीका नहीं है ना। जैसे गवर्नमेंट ने एक पब्लिक पार्क, एक गार्डन बना के दिया, लोग जाके वहाँ पे रिलैक्स होते हैं, बूढ़े लोग जाके वहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, लोगों को फायदा हो रहा है। सवाल यह है कि कितना फायदा हो रहा है उसको आप पैसे में काउंट नहीं कर पाओगे ना। सो चिल्ड्रन, इट इज लाइक सब्जेक्टिव इन नेचर। जैसे कि गवर्नमेंट सिग्नल्स बना के रखे, जो ड्राइविंग करते हैं उनके लिए काम आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ड्राइविंग नहीं करते उनके लिए काम नहीं आएंगे। गार्डन्स बना, जो गरीब है वहाँ पे जाना चाहते हैं उनके लिए काम आते हैं, जो अमीर है खुद का गार्डन बना के रख सकते हैं वो लोग वहाँ पे जाएंगे नहीं, तो आई थिंक मेजरमेंट बिकम्स डिफिकल्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 20 चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू लर्नर the government should maintain a reasonable level of dash at all times by using the dash. अच्छा, तो जनरली फॉर एग्जांपल एग्रीगेट सप्लाई और मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आरबीआई का काम होता है। एग्रीगेट डिमांड और बजट, और प्राइस और बजट और सेविंग्स, और मॉनेटरी पॉलिसी तो आएगा नहीं, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट ऑप्शन।
गवर्नमेंट को क्या मेंटेन करना होता है? एग्रीगेट डिमांड। किसके जरिए? बजट के जरिए। सो आई थिंक दिस एनीवे चिल्ड्रन, आई होप यू पीपल आर अवेयर दैट आई ऑलवेज टोल्ड यू कि पहला जो चैप्टर रहता है वो चैप्टर आगे के सब चैप्टर्स का एक समरी रहता है। आई थिंक व्हेन वी गो टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर, ये अलग से नहीं पढ़ा तो भी चलता है क्योंकि उसमें वो लोग बाकी के चैप्टर्स को थोड़ा सा शॉर्ट में समराइज करके देते। ओके, then children, the second chapter that we were studying was actually related with what is known as the principle of maximum social advantage. Okay, so इसके objectives क्या क्या है देखते हैं। The first one children, question answers तो अपने लिए ज़्यादा important नहीं है क्योंकि objectives आएंगे आपको। So choose the correct alternatives and rewrite the statement. Number one, the economics associated with the principle of maximum social advantage is dash. Seligman, Samuelson, Dalton and Sweezy. So हमने कौन सा नाम सुना है बच्चों? Dalton's theory of what is called a maximum social advantage. Next, which of the following is an assumption of the principle of maximum social advantage? अच्छा, all taxes result in sacrifice. Public expenditure is subjected to increasing marginal social sacrifice. Public expenditure is increasing social sacrifice. Okay, and then all taxes result in social benefit. Galat. Public revenue includes non-tax revenues besides taxes. I think like ये भी इसमें फिट नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सेकंड का ऑप्शन आएगा आपको सिर्फ ऑप्शन ए। सो ऑल टैक्सेस रिजल्ट इन सोशल सैक्रिफाइस, हर एक टैक्स हमको सैक्रिफाइस करा के जाता है, वो तो अजम्पशन में इंक्लूडेड था चिल्ड्रन। Which of the following, क्या क्वेश्चन, which of the following is not an assumption of the principle of MSA? All taxes result in sacrifice, ये तो assumption में आता है, मतलब ये अपने आंसर में है। All public expenditure lead to benefits, ये भी assumption में आता है, तो अपने लिए आंसर नहीं होगा। Public revenue consists only of taxes and the budget must be surplus or deficit. अच्छा, so third का आंसर है चलो, the budget may be surplus or deficit। उन्होंने बोला है चलो कि बजट ना ही सरप्लस होगा ना ही डेफिसिट होगा, बजट सिर्फ कौन सा होगा? बैलेंस बजट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज बेस्ड ऑन डैश एनालिसिस। ओके, तो आई थिंक लाइक चिल्ड्रन इट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज कॉल्ड मार्जिनल एनालिसिस। ओके, और सपोज फॉर एग्जांपल लाइक वी कैन आल्सो call it as marginal utility analysis. Okay, क्योंकि extra marginal word का meaning पता है चलिए, lower standards we have heard it, extra, additional, increase, that's what we refer to it. Question number 5, maximum social advantage is achieved when marginal social sacrifice is equal to marginal social benefit। और मुझे लगता है बाकी के ऑप्शंस देखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाला अपना आंसर है। Whenever marginal social sacrifice becomes exactly equal to marginal social benefit, then we term it down as maximum social advantage. Question number 6. Marginal social sacrifice of taxation increases as the revenue collected by the government from tax becomes। क्या बच्चों लोग यहाँ पे हम लोग जितना जितना टैक्सेस बढ़ते जाएंगे तो अपना जो सैक्रिफाइस वो बढ़ते जाएगा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जितना ज्यादा पैसा मिलेगा तो अपना सैक्रिफाइस तो उतना ही बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि मुझे अपने मेहनत का पैसा होता है, हम लोग उसको टैक्स करके पे कर देते हैं। सो हमारे लिए सैक्रिफाइस है, दो गवर्नमेंट के लिए क्या बन सकता है? बेनिफिट, बट फॉर अस इट इज अ सैक्रिफाइस। नेक्स्ट, टैक्सेस आर सब्जेक्ट टू डैश। टैक्सेस की वजह से बच्चों लोग आपको पता है हमारा जो सैक्रिफाइस है वो बढ़ते जाता है। सो मुझे लगता है आंसर इज पॉइंट सी। कौन सा आंसर है अपना? सी, दैट इज इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। ध्यान रखने का कि गवर्नमेंट जब भी हमारे ऊपर कुछ पैसा खर्च करेगी उसमें से हम लोग को मिलने वाले बेनिफिट्स जो रहते हैं they will always keep on increasing, but at the same time children, whenever we are referring to any expenditure, what the point we need to understand is that कि expenditures की वजह से होने वाला sacrifice जो है वो क्या होगा? It will keep on
एक्सपेंडिचर की वजह से मिलने वाला बेनिफिट जो है वो कम होते जाता है, और जब गवर्नमेंट हम लोग को टैक्स लगाती है तो हम लोग का जो सैक्रिफाइस होता है वो सैक्रिफाइस धीरे धीरे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, द मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस कर्व increases at an increasing rate because of dash. अच्छा, तो आई थिंक फॉर एग्जांपल increasing disutility that is experienced by the people who are taxed. तो जैसे आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो आप क्या एक्सपीरियंस करोगे कि आपका जो डिसयूटिलिटी है, आपको जो बुरा लगता है वो क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। ओके, देन चिल्ड्रन we come towards our next point here for discussion, that is marginal social benefit declines with increasing public expenditure due to diminishing marginal utility of public expenditure. क्या है? Diminishing marginal utility of public expenditure. Okay, so मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जब हमारे ऊपर पैसा खर्च करती है तो उसमें से हमको मिलने वाला बेनिफिट धीरे धीरे क्या होता है, डिमिनिश होता है। और इसका रीजन मैंने बहुत सारे लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि इनिशियली गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर पैसा खर्च करती है और धीरे धीरे लेस इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर पैसा खर्च करना चालू कर देती है गवर्नमेंट। जैसे 1990s में तुम गवर्नमेंट के पास फ्री में वाईफाई नहीं मांग सकते थे, लेकिन आज गवर्नमेंट वो भी रेलवे स्टेशन पे फ्री में दे दिया आपको। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन एमएसएस एंड एमएसबी मेजर्स डैश एमएसएस और एमएसबी, ए सैक्रिफाइस और ए बेनिफिट, उसके बीच में जो बचता है चिल्ड्रन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नेट सोशल एडवांटेज। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? नेट सोशल एडवांटेज। If example like we can also call as marginal net benefit करके भी बोला जाता है उसको। Number 11 children, when the size of the budget is less than optimum, then dash. अच्छा, then what will happen children? That is marginal social sacrifice will be less than marginal social benefit. जब बजट में चलो ऑप्टिमम साइज से कम होता है तो आपका मार्जिनल सोशल बेनिफिट ज्यादा होगा और मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस क्या होगा, कम होगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे उल्टा लिखा मैंने, that is MSS is less than MSB. Number 12 children, that is when the budget size is larger than optimum. अभी यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ना children, when the budget size is larger than optimum, I think उल्टा होने वाला है। क्या होगा बताओ? अभी है ना children, MSS ज्यादा हो जाएगा और MSB कम हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ये वाला, मुझे लगता है डी। So 12 का आंसर चिल्ड्रन डी, marginal social sacrifice is greater than marginal social benefit. Next, the maximum welfare principle of budget determination is associated with Richard Musgrave. Principle of maximum social advantage किसने दिया था? ह्यूग डाल्टन। और उसी का एक दूसरा वर्जन किसने दिया है? रिचर्ड मस्ग्रेव। मुझे लगता है सेम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन विद सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स वी कैन से चिल्ड्रन। ओके, सो these are the names, so objectives है तो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। Next, in Musgrave's interpretation, the optimum budget size is given at the point where marginal net benefit becomes zero. Marginal net benefit क्या हो जाता है? Zero हो जाता है। उस टाइम पे अपना मैक्सिमम बजट करके बोला था उसको, या फिर ऑप्टिमम बजट करके बोलते हैं। That happens when children, when MSB becomes exactly equal to MSS. क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों का गैप कितना होगा? जीरो होगा। And that is why children, that is called as the optimum budget. Next, which of the following is not one of the objectives of criterion of the application of principle of maximum social advantage provided by Dalton? क्या बोला देखो? Which is not an objective करके बोला है। अच्छा, not an objective मतलब improvement in production of wealth. I think this is nothing to do with that. Improvement in income distribution नहीं, stability of economic activity नहीं, increased budget deficit. I think like that's what is called as, I think ये सब options fit नहीं होते, ये वाला उसका objective नहीं है, इसलिए अपने आंसर में ये वाला fit हो जाएगा। Which of the following is a valid limitation of the principle of maximum social advantage? इसमें से कौन सा limitation है करके बोला है? Realistic assumption गलत लिखा है, actually unrealistic assumption होता है। Considers deficit and surplus budget, ignores non-tax revenue, considers non-economic implications. अच्छा, तो मुझे लगता है ऑप्शन सी should be the right answer,
क्योंकि इन्होंने नॉन टैक्स रेवेन्यू को इग्नोर किया है, लोग बोलते हैं कि सिर्फ टैक्स के रेवेन्यू को कंसिडर करने का। 17. There is conceptual discrepancy in the principle of maximum social advantage. This is reflected in dash. Conceptual का मीनिंग आप सबको याद होना चाहिए कि हम लोग जो टैक्स पे करते हैं ना चिल्ड्रन, वो माइक्रो लेवल पे होता है, बराबर, लेकिन बेनिफिट जो मिलता है वो तो मैक्रो लेवल पे सब लोगों को मिलता है, टैक्स का पैसा सब लोगों के ऊपर खर्चा किया जाता है। अच्छा, सो आई थिंक लाइक इधर पहले ऑप्शन में ही लिखा है, देखो कि हम लोग जो सैक्रिफाइस, आपको बुरा लगता है, मैंने टैक्स भरा चलो मुझे बुरा लगा ना, तो माइक्रो लेवल पे हो गया, लेकिन बाद में मेरा पैसा जब पूरे देश के ऊपर खर्चा होगा तो उसमें से मिलने वाला बेनिफिट जो है ना वो सब लोगों को मिलेगा, मतलब कौन सा फिनोमेनन हो गया, मैक्रो। तो आप माइक्रो लेवल का सैक्रिफाइस मैक्रो लेवल के बेनिफिट के साथ कंपेयर नहीं कर पाओगे, और इसलिए चिल्ड्रन वी कैन कॉल दैट एज अ conceptual discrepancy बोलते हैं उसको। And point number 18 children, that is public expenditure is subject to dash. Expenditure is subject to diminishing marginal social benefit. तो आपको मिलने वाला बेनिफिट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। And marginal social benefit declines with every additional unit of money spent by the government due to diminishing marginal returns, diminishing marginal utility, and we got diminishing marginal productivity. मुझे लगता है ऑप्शन should be B, that is diminishing marginal utility. Clear? अच्छा. Then children, we move forward to our chapter number 3. Third वाले chapter में children, we were studying about what is called as market failure, okay, and the government intervention and all those concepts. Yes. So I think some people have studied it. जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है बुक, आपके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा, तो कभी भी आप मेरा लेक्चर देखोगे उससे पहले थोड़ा सा लेसन्स को आप मेन पॉइंट्स को पढ़ो और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा फिर, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स एंड रीराइट द स्टेटमेंट्स। ओके, सो द फर्स्ट वन चिल्ड्रन, मार्केट फेलियर रिजल्ट्स व्हेन इट फेल्स टू डैश। ऑप्शन 1 अर्न सुपरनॉर्मल प्रॉफिट, गलत जवाब। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गलत जवाब। अचीव परेटो ऑप्टिमलिटी, दैट इज मतलब लेस देन ऑप्टिमम होता है ना मार्केट, उसका मतलब जब आप ऑप्टिमम हो सकते हो लेकिन आप ऑप्टिमम नहीं हो। जब मैं एक आध क्लासरूम में 50 बच्चों को बिठा के लेक्चर ले सकता हूँ, लेकिन मैं वहां पे 30 बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, सो आई एम फंक्शनिंग एट लेस देन ऑप्टिमम लेवल, तो उसको हम लोग मतलब क्या होता है बच्चों कि डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं हो रहे। सो व्हेनेवर डिमांड एंड सप्लाई डोंट बिकम इक्वल, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज market failure. Second वाला question है children, that is productive efficiency is obtained when production is dash. तो आंसर आएगा on the PPC. Production possibility कर्व होता है children, ये देखो, I think like हम लोग इसको production possibility कर्व बोलते हैं। तो कोई भी पॉइंट बच्चों लोग जो इस लाइन के ऊपर आता है उसको हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। इसके अंदर या फिर इसके बाहर वाला पॉइंट क्या होता है, लेस देन एफिशिएंसी, इसको हम लोग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं और इसको अनअचीवेबल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म मार्केट फेलियर रिफर्स टू डैश। तो ऑप्शन डी पहले देखो, फर्म इज फोर्स्ड आउट ऑफ बिजनेस बिकॉज़ ऑफ लॉसेस, नथिंग टू डू विद मार्केट फेलियर। कट थ्रोट कंपटीशन अमंग द फर्म्स इज नॉट मार्केट फेलियर। अनसक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं। मार्केट दैट फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली, तो कभी भी मार्केट एफिशिएंट नहीं होता है तो उसको हम मार्केट का फेलियर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑकर्स व्हेन। अच्छा, मतलब आपको जितना इनपुट दिया हुआ है और उतने इनपुट में आप क्या करते हो चिल्ड्रन, मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करते हो। एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग, नहीं। मार्जिनल कॉस्ट इज नेगेटिव, नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विद अ गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट। क्या आपको जितना इनपुट दिया उसमें आप मैक्सिमम गुड्स जब प्रोड्यूस करोगे तो उसको हम लोग प्रोडक्टिव एफिशिएंसी करके रिफर करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 चिल्ड्रन, an example of an externality is the impact of dash. एक्सटर्नैलिटी क्या होता है चिल्ड्रन, एक्सटर्नैलिटी जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो हमारे बिजनेस का सोसाइटी के ऊपर या तो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आता है फिर नेगेटिव। तो एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। बैड क्रॉप्स ऑन द इनकम ऑफ फार्मर्स, क्या बोला, बैड क्रॉप्स ऑन द इनकम ऑफ फार्मर्स, नो। अ टैक्स रेट हाइक ऑन अ पर्सन्स एबिलिटी टू परचेज गुड्स, मतलब टैक्स बढ़ा दिया, वो भी नहीं। पॉल्यूशन, आपको पता है चलो एक्सटर्नैलिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है
पोल्यूशन। और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्थ सेंटर्स, कुछ लोग ये एक्सटर्नैलिटी नहीं काउंट होगा यहाँ पे, सो पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is not a features of public goods? नॉन राइवल पब्लिक गुड्स क्या होता है बच्चों लोग? ऐसे गुड जो टैक्स भरने वाले लोग, पे करने वाले लोग यूज करते हैं, जो पे नहीं करते वो लोग यूज कर सकते हैं और आप उनको वहां से रोक नहीं पाओगे। मतलब दे आर नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर पाओगे। आप टैक्स भरो ना भरो, लेकिन चलो डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का फायदा तो सभी लोग उठाते हैं ना। हाँ, तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर सकती जिन्होंने टैक्स भरा उनको ही मिलिट्री का सेवा मिलेगा, बाकी लोगों को पाकिस्तान लेके जाएगा तो चलेगा करके। एंड सी फ्री राइडर प्रॉब्लम, यस, एंड कंज्यूमर्स वॉलंटरली पे फॉर सच गुड्स। तो मुझे लगता है ऑप्शन शुड बी डी। Okay, they don't pay for them because they're getting it free. Question number 7. In economics, a difference in access to relevant knowledge is called a difference in access to relevant knowledge. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Information asymmetry. मैंने आपको बोला था चलो दो पार्टी होते हैं, पार्टी ए और पार्टी बी। पार्टी ए के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, पार्टी बी के पास कम इंफॉर्मेशन है। पार्टी ए पार्टी बी को चीट कर सकता है ना। इंश्योरेंस बेचने वाले से भी ज्यादा इंश्योरेंस खरीदने वाले को पता होता है कि रिस्क कितना है। इंश्योरेंस देने वाला ये सोच के इंश्योरेंस देता है कि उसको लगता है कि इतना रिस्क नहीं। खरीदने वाले ने अगर उसको कुछ रिस्क छुपा के रखा तो हाँ, तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन असिमेट्रिक। मतलब व्हाट इज सिमेट्रिकल चिल्ड्रन? सिमेट्रिक मतलब सेम, असिमेट्रिक मतलब डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 8. When asymmetric information affects relationship between two parties, it is also called as the case of dash. मतलब asymmetric information की वजह से जब दो पार्टीज को differences मतलब अफेक्ट होता है तो one party is better informed than the other party. एक पार्टी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, दूसरे पार्टी के पास। बच्चों लोन देने वाले से ज्यादा लोन लेने वाले को पता होता है कि वो वापस करेगा कि नहीं करेगा। अगर मैंने पहले से प्लान करके रखा है कि मैं लोन दूंगा ही नहीं, अभी बैंक को लगता है कि बंदा लोन देगा इसलिए वो देते हैं, मैंने तो पहले से सोच के रखा है, उनको पता नहीं कि मैंने अपने मन में क्या, उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है मेरे बारे में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 which is talking about dash is a concept in economic theory which describes the allocation of goods and services by a free market is not efficient. मतलब efficient तो है नहीं तो उसको मार्केट फेलियर बोला जाता है। Number 10, the dash involves production of goods and services by using non-optimal combination of inputs. So that is productive inefficiency, I suppose. Yes, efficiency तो होगा नहीं, non-optimal बोला है ना, तो productive inefficiency. The points inside the PPC are inefficient because we could produce more goods and services with no additional cost. If you know additional, मतलब बच्चों लोग अगर कोई भी कर्व, ये बच्चों लोग क्या बोलता है, मैं आपको ये इसको हम बोलते हैं पीपीसी, कोई पॉइंट अंदर आ गया, इसका मतलब क्या होता है कि बिना एक्स्ट्रा खर्चे के आप और ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन आपने प्रोड्यूस नहीं किया ना। सो दैट इज विद नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए आप लोगों को क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 चिल्ड्रन, dash goods are characterized by two important features, non-liable in consumption and non-excludable. भी आपको पता होना चाहिए चलो कि ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड्स। And 13 question children is talking about if left to themselves market can be highly efficient ना। अच्छा, मतलब अगर आपने मार्केट्स को अकेले छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? तो आंसर इज चिल्ड्रन will produce socially unacceptable outcomes. अगर मार्केट को गवर्नमेंट ने फ्री छोड़ दिया, तुमको जो करने का ही करो। अगर सबको बताया गया है कि तुमको जो बेचने का बेचो, आधे से ज्यादा दुनिया दारू बेचना चालू करेगी बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकम उसमें होता है। लोग या तो खुश होते हैं फिर दुखी होते हैं, टाइम पे लोगों को शराब की जरूरत होती है। तो अपने लगता है अगर मार्केट को फ्री छोड़ दिया तो अनएक्सेप्टेबल, जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, वैसी चीजों को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों इकोनॉमिक activities में। Okay, so children, these were the 3 chapters. Again I am telling you children, देखो आपने सिर्फ MCQs का लेक्चर देखा और आपको MCQs आ गए ऐसे तो होगा नहीं। आपको क्या करना है कि थोड़ा सा रिवीजन करके बाद में आप मेरा वीडियोस देखो तो शायद आपको समझ में आएगा। लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होते तो आप कमेंट बॉक्स में फिर मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो। आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स देयर इटसेल्फ। So that's all for today children. See you in the next lecture with chapter or module number
2 का MCQs का discussion. Okay, so I think till then, bye everyone. Take care.